یہ نسیمہ خاتون کا مکان ہے جس میں وہ اپنی بیٹی منورہ اور بہو شیرین کے ساتھ رہتی ہے۔ ان کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے۔ شیرین ایک دیندار لڑکی ہے جس کے صحبت میں رہ کر منورہ کے دل میں دین حق پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی خواہش جاگ اٹھی ہے۔ دونوں کی یہ خواہش ہے کہ گھر کی تمام افراد پر دین حق کا رنگ چڑھ جائے۔ نسیمہ خاتون اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کے ساتھ حج کی شاپنگ سے لوٹتی ہے۔ منو تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امی آج تو شاپنگ میں اتنا مزہ آیا، او مائی گاڈ۔ سچ کہا تم نے تبو، اتنے سارے ڈریسز ہم نے دیکھے اور خریدے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے تھے تب تو دوپہر تھی اور اب شام ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ لوگوں نے نماز وہی پڑھ لی ہوگی، مارکیٹ والی مسجد میں۔ شیرین بھابھی، ہم تو اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ ہمیں تو اذان کی آواز سنائی نہیں دی۔ ذرا ہمارے لیے کچھ سنیکس لاؤ، ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں۔ لیکن شنو، وہاں کی مسجد کی اذان تو لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے۔ امی جان، آپ لوگ نماز کیسے چھوڑ دیتی ہیں؟ وہاں پڑھ لینا چاہیے تھا نا۔ وہ لکھنوی سوٹ کی دکان پر جو ڈریس ہم نے پسند کیا تھا، دکاندار تو اس کی بارگیننگ کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہاں سچ کہا تم نے، وہ امی نے اس کو اتنی زیادہ باتیں سنائی اور اپنے تجربات بتائے کہ اسے ماننا ہی پڑا۔ کیسے نہیں مانتا؟ ہائے اللہ میں باری جاؤ میری بچی۔ لیکن سودا تو بڑے گھاٹے کا رہا، نماز جو گنوا دی۔ ارے یار تم تو نہ بس قضا پڑھ لیں گے، نماز کہاں بھاگے جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زہیدہ آپا۔ کیسی ہے آپ نسیمہ آپا؟ آپ کی طبیعت کی ناسازی کے بارے میں سنا تو سوچا خیریت دریافت کر لوں۔ میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں کیونکہ شاپنگ کرنے جانا تھا۔ کیسی پڑوسن ہیں آپ؟ آپ نے میری طبیعت کی ناسازی کے بارے میں سنا مگر یہ نہیں سنا کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں۔ اللہ سچ؟ آپ نے تو بڑی تقدیر پائی ہے۔ آئیے بیٹھے۔ ارے بہو ان کے لیے کچھ لانا۔ کب کی فلائٹ ہے؟ سارے ارکان کی جانکاری تو لے لی ہوگی نا آپ نے؟ آج کل تو کئی جگہوں پر اس کی تربیت کروائی جاتی ہے۔ امی صحیح ہے، سب سے پہلے ضروری تو ہے، میں ذرا شاپنگ کر رہی تھی، آخر اچھے نئے کپڑے سلوانے بھی تو ضروری ہے۔ سارے رشتہ داروں سے مل لوں ورنہ وہ سب شکایت کریں گے کہ بتایا نہیں۔ درزی کو کپڑے دینے ہیں، سارے رشتہ دار میری دعوت کی ضد کریں گے۔ سب سے فرصت پا لوں، پھر یکسوئی سے سوچوں کہ کہاں پر تربیت کی کلاس چلتی ہے۔ آپا میں آپ کو خاص طور سے مبارکباد دیتی ہوں۔ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی، اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہاں ضرور، آپ اپنی طرف سے ہر ملنے جلنے والوں اور پاس پڑوسوں کو بتاتے رہیے گا کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں۔ آپا میں چلتی ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امی جان، سب سے پہلے ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، سب حج کی آیات اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجہ علیہ السلام کی قربانی کا، پھر دعا یاد کریں گے۔
इंशाअल्लाह। अरे तब्बू और शन्नू, तुम दोनों ने अपने ससुराल में बताया कि नहीं कितनी सारी तैयारियां करनी है? आखिर रोज रोज तो कोई जाता है नहीं। खूब जम के तैयारी होनी चाहिए। नए बैग, नए शूज, नया मखना और फिर अरे जरा लिस्ट तो लाना, चेकलिस्ट। तब्बू जरा चेकलिस्ट लेके आना। अम्मी, जब मैंने उनकी अम्मी जान को बताया तो कहने लगी कैसी भी क्या जल्दी है, मिल लेंगे, पहले कंफर्म तो हो जाना ना कि कब जा रहे हैं, एक हफ्ता पहले आकर मुलाकात कर लेंगे। अम्मी, ये रही चेकलिस्ट। मेरे घर वाले तो कहने लगे कि फोन पर ही बात कर लेंगे। अम्मी, सच में ना उनके और हमारे ख्यालात मिलते ही नहीं हैं। मैंने अलग अलग तरीके से याद दिलाने की कोशिश की कि कोई गिफ्ट खरीदे आपके लिए, मगर वो लोग तो कहने लगे कि इतना सारा सामान होगा ही आपके पास, ज्यादा सामान ले जाने की इजाजत नहीं होती है एयरपोर्ट पर। बड़े ही बोर लोग हैं सच में। अरे बच्चियों, छोड़ो, जाने दो। मुस्तकबिल में कभी वो जाएंगे तो हम हमारा हिसाब बराबर कर लेंगे। बस तुम लोग याद रखना। अच्छा, तुम्हारे मामू जान को इधर ला थी कि नहीं? मम्मा चलो जल्दी, आज वक्त चला जाएगा, कुछ सीख ले। हाँ अम्मी, मैंने कल ही मामू जान को बता दिया था, बहुत ही जल्दी वो भी आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे। अम्मी जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमको अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है और उससे डरना है। दिखावा शैतान का हथियार है, हमें उससे बचना है। अम्मी, मुझे डर है कि अल्लाह इस चीज को पसंद नहीं करता। आप हज पर जा रही हैं ना, अल्लाह के लिए, उसके रजा के लिए, तो अल्लाह ही को राजी करना और अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह तो हमें इस रिया से बचाए। बेशक जजा और सजा का दारोमदार हमारी नीयत पर है। अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया गया अमल ही इनाम का मुस्तहिक होगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया अमल रियाकारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन महमूद इब्न लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल असग़र क़ालू व मा अश्शिरकुल असग़र क़ाल रिया यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल लिअस्हाबी ज़ालिका यौमुल क़ियामह इज़ा जाज़ा अन्नास इज़हबू इला अल्लज़ीना कुन्तुम तराऊना फ़िद दुनिया फंजुरू हल तजिदूना इंदहुम जज़ा। रवाहु इमाम अहमद फी मुस्नदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी एक चीज को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ और वो है शिर्क असगर। लोगों ने पूछा, वो क्या है या रसूलुल्लाह? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़िया, शोइंग ऑफ। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन रियाकारों से कहेगा, जाओ तुम उन लोगों से इनाम हासिल करो जिनके लिए तुम अमल किया करते थे, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। Missing the beat, throwing the heat, gotta conspire to change your life, gotta conspire to change your life, or it's the fight. हेलो, हाँ शकीला भाभी, अब कब आ रहे घर पर? आपको नहीं मिलना क्या मुझसे? मालूम तो हुआ होगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। हेलो मैडम, हमारी बात तो सुनिए। हम ओमेगा एंटरटेनमेंट से बोल रहे हैं। हमारी कंपनी केबल कनेक्शन का एक नया ऑफर लेकर आ रही है। आप पहले से भी ज्यादा चैनल्स देख सकती है अपने टीवी पर। मोर म्यूजिक, मोर फन। अस्तगफिरुल्लाह, हमें नहीं चाहिए कोई ऑफर। वैसे मैं आपको भी बता दूं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। दोबारा फोन मत कीजिएगा। लो कर लो बात। अब टीवी म्यूजिक किसको चाहिए? अम्मी, किसका फोन था? मैंने सोचा तुम्हारे मायके से फोन आएगा। तुम्हें न खबर की कि नहीं? हाँ अम्मी जान, मैंने उन्हें इत्तला की है। जब वो लोग आपसे मिलने आएंगे तो आपको तरबियत वाले सेंटर्स के एड्रेसेस भी देंगे। और काम तो सीख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी मुश्किल की बात है। तुम एक काम करो, दर्जी से कहो
कि ड्रेस पैटर्न की किताब भेज दे और पहले ही बता देना कि हज का मामला है, इसीलिए हमारे कपड़ों को सबसे पहले तरजीह दे। जी अम्मी जान। अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा आपा। आइए। अस्सलामुअलैकुम नसीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। देखिए हम सबको खुशखबरी मिल गई। आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा आपा। आइए। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा आपा। आइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा आपा। अस्सलामुअलैकुम नसीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तब्बू, जरा फोन तो उठाना। जी अम्मी। हेलो। हाँ भाईजान। क्या? नहीं भाईजान, आप कुछ कीजिए, इज्जत का सवाल है। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? अम्मी, भाईजान का फोन था। कह रहे थे कि वीजा नहीं मिला और इस साल मिल ही नहीं सकता क्योंकि कोटा खत्म हो चुका है और फिर सारी फ्लाइट्स भी फुल हो चुकी हैं और अब नामुमकिन है। अब उनसे कहिए कुछ करें। सब कुछ करने वाला तो अल्लाह ही है, हमारे तुम्हारे हाथ में क्या है। फिर भी इस तरह ना उम्मीद नहीं होते। इंशाअल्लाह अगले साल आपको वीजा जरूर मिल जाएगा। अब इतने सारे लोगों को जमा कर दिया और बेइज्जती हो गई। कौन है जिसका आपने नहीं कहा होगा कि हम जा रहे हज के लिए, और अब हम उन्हें किस मुंह से कहेंगे? काश हमने सादगी इख्तियार की होती, काश हमने रियाकारी ना की होती, काश हमने सारे मराहिल में कामयाब होने की दुआ की होती। काश मैंने मेरी बच्चे की बात सुनी होती। मुनव्वरा, मुन्नू, तुम ठीक कह रही थी। मुझे अल्लाह से दुआ करना चाहिए था और डरना। या रब, तू मुझे माफ कर दे। या रब, काश मैंने पहले से ही अपनी तवज्जो हज के अरकान सीखने में लगाई होती और अल्लाह सुब्हानहू तआला से खूब सारी दुआ की होती। या रब, तू मुझे माफ कर दे। अम्मी, अल्लाह गफूर रहीम है, वो आपको जरूर माफ करेगा। अगले साल आप खुलूस नियत के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए हज करें, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।